Hello dear students, I Sandeep Kumar, Economics Faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. Welcome you all in the economics class. So dear students, in today's class we will be learning about the extension part of measures of central tendency, and here you can see this is our part number 3 as we have gone through mean, median, quartiles and the next is mode. फाइन बेटा ये भी हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट होता है. बेसिकली दिस इज अ वैल्यू ऑफ द सीरीज विच इज फैशनेबल. व्हाट इज फैशनेबल? और वी कैन से दैट एनी ऑफ द वैल्यू विच इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द मैक्सिमम रेपिटेशन ऑफ द नंबर इज टर्म्ड एज मोड. आई कैन से दैट कि कोई भी अपने आप में एक ऐसा फिगर जो कि सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है और इसी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो भी एक्स या वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोड. सो यू कैन ओपन योर बुक, एनसीईआरटी बुक, एंड प्लीज स्टार्ट अंडरलाइनिंग द सेम थिंग हियर. फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट मोड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर. द वर्ड मोड has been derived from the French word that is la mode. आप जो इसका ओरिजिन देखेंगे वो कहाँ से बेटा? फ्रेंच लैंग्वेज से है. और वर्ड क्या लिया हमने? दैट इज ला मोड, which signifies the most fashionable value of a distribution because it is repeated the highest number of times in the series. The same thing I have told you कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है सीरीज में. Mode is the most frequently observed data value and this is denoted by MO. You can denote this by MO and Z as well. जो हमारा Z होता है अल्फाबेटिकल, हम उससे भी इसको डिनोट कर सकते हैं इजी गोइंग. तो ये होता है बेटा हमारा मोड. अगेन रिपीटिंग आई एम द सेम थिंग. कोई भी अपने आप में एक ऐसा फिगर, एक ऐसा नंबर जो कि सीरीज में मोस्टली रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फैशनेबल नंबर है, दैट इज टर्म्ड एज मोड. क्लियर बेटा? अब रही बात इसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन की. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. So again that we think no, there are always threes in the statistics for the calculation of any of the measure. So start writing in your notebook as well that there are 3 series for the calculation of mode, that is MO. Fine beta. The first one is individual series. Second is discrete. And the very third, continuous series. Dear students, you will be surprised to know that under the calculation of this mode, we have only single formula. That means I can say there is no use of the formula under individual series, under discrete series also. We will use the formula particularly only in continuous series. ठीक है बेटा? यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा पूरे मेथड में. इन दोनों सीरीज में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं. ओनली इन कंटिन्यूस सीरीज विल बी यूजिंग वन फॉर्मूला. क्लियर? साथ के साथ आपको इसको कॉपी करें इन योर नोटबुक. Again we know that we have 3 series, individual, discrete and continuous series for the calculation of mode. Here first of all I will be starting with the first series which is individual. You need to copy along with me. It is individual series where we find only x variables. Find beta. इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जहां पे हमें ओनली एक्स वेरिएबल्स गिवन होते हैं. ठीक है? एफ या फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होगा यहां पे. सो हियर वी हैव 2 मेथड्स. द मेथड नंबर 1 इज inspection method, or you can say observation. Method as well. Fine beta. You can say this as inspection method or observation method. Method number 2 is
by converting individual series into discrete. We have beta these two methods. The one is inspection method or we can say observation method to this as well. ठीक है? And the second is by converting individual series into discrete series. At first we will begin with this inspection or observation method. As in individual series, again I am repeating that we will be providing only x variables, such as here is a question that calculate mode under this following data. Fine. And data will be like this. X variables are there: 20, 22, 24, 21, 23, 27, 22, 25, 24, 25, 22, 29, 30, 27, 22, 21, 20, 22, 30, 22. Now dear students, you need to see one thing. ये आपको only x variables ही given है, ठीक है? Don't consider this as frequency. मेरे पास नीचे place नहीं था, that is why I have put these values here. ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सारी x variables given है. What I told you कि what is meant by mode? Mode is the value which is mostly repeated or the frequency of the number is maximum. That particular figure is known as mode. अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जिनका रेपिटेशन हो रहा है, such as 20 0, 1, 2, 2 times fine, 22, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 22 is being used here 6 times. Then next is 24, 1, 2, 2 times, 21 is here, 1, 2, 22, we have counted 25, 1, 2, only 2 times, 29 is here, only single time, 30 is here, 2 times. So we can say here that the figure which is 22 is being used 6 times. इस वजह से जो हमारा मोड होगा वो भी क्या होगा बेटा 22. बस हमारा इतना सा आंसर, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐड डिवीजन जैसा कुछ नहीं करना हमें. बस यहाँ पे जो मार्क्स होते बेटा एक स्टेटमेंट के होते हैं, और स्टेटमेंट क्या है? दैट 6 इज द मैक्सिमम frequency of 22, so MO is equals to 22 and this is what answer. That's it. As I told you in the beginning कि बेटा यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इतना सा काम है. यू नीड टू ऑब्जर्व. एज यू नो दैट द मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड और इंस्पेक्शन मेथड. हमें सिर्फ इंस्पेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो कि मोस्टली रिपीट हो रहा है, एनी ऑफ द फैशनेबल नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एंड दैट वी फाउंड दैट इज ओनली 22 व्हिच इज बीइंग यूज्ड 6 टाइम्स. तो आपको ये स्टेटमेंट देना है दैट 6 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 22, सो MO which is mode, और you can say Z as well. ठीक है, आपको ये बेटा Z भी मिल सकता है कहीं ना कहीं पे. So both are correct, that Z is equals to 22. This is the answer. Clear beta? This was what the first method of individual series. Now let's proceed towards the method number 2, which is what? By converting individual series into discrete series. Method number 2 is by converting individual series into discrete. Clear beta?
देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट, हाइपोथेटिकल डेटा. अगेन वी हैव दोज एक्स वेरिएबल्स 16, 17, 12, 13, 20, 12, 14, 15, 12, 19, 18, 12, 17, 20, 19, 12, 14, 15, 12 and again 12. Fine beta. These are the values. You can see यहाँ से लेके यहाँ तक again we have these x variables. What I have stated here that by converting individual series into discrete. This is individual series. Discrete series क्या होती है बेटा? क्या होता है discrete में? x variables and frequency exist there. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे x और f में? इट इज सो सिंपल. क्या करना है बेटा हमें? हमारा प्राइमरी स्टेप क्या होगा यहाँ पे? एट फर्स्ट यू विल हैव टू पिक अप ओनली द कॉमन फिगर्स एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स टू से आपको क्या करना है, यहाँ जो भी आपको फिगर्स गिवन है इसमें से आपको हर एक कॉमन फिगर पिक करना है. कॉमन मीन्स टू से जैसे 16 रिपीट हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है, सो यू विल हैव टू टेक दोज नंबर्स ओनली सिंगल टाइम. वन टाइम यू विल हैव टू सिलेक्ट एंड अरेंज देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर. देखिए सबसे छोटा फिगर हमारे पास है 12. आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. You will have to take this 12, then the next is 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and the last one is 20. ठीक है बेटा, ये क्या कि हमने कॉमन फिगर्स को पिक किया यहां से. नेक्स्ट स्टेप होगा अब हमारा टेलीबार्स. ठीक है बेटा, टेलीबार्स क्या होते हैं? इफ यू रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि टेलीबार्स का यूज कहां होता है, कैसे होगा. इट इज सो सिंपल. अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से फिगर्स को स्टार्ट करना है. सच एज 16 इज हियर. ठीक है, 16 इज हियर, यू विल हैव टू पुट दिस 1 बार हियर. क्या करेंगे आप? 16 के सामने आपने एक सिंगल बार लगा दिया. नेक्स्ट इज 17, सिंगल बार. 12 इज हियर, 13, 20, again 12, 14, 15, 12, 19, 18, 12, 17, 20, 19, 12. नाउ सी बेटा 1 2 3 4. ठीक है, फिफ्थ वाला हमें यहां नहीं लेना बेटा. फिफ्थ के लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह से एक स्लैश होगा. गॉट इट? 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ. इससे क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको 5 को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट इज 14, 15, अगेन 12. अब क्या करना है बेटा? अब ये नहीं कि आप ऐसे कर देंगे फिर ऐसे ऐसे कर देंगे. नो, नॉट लाइक दिस. 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट 1, अगेन 12 इज देयर, अगेन 1. सपोज अगर इस तरह से इसका रेपिटेशन बार बार होता है, सो 1 4, अगेन 1 2, इस तरह से आपको आगे चलते रहना होगा. ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. सो दिस वी हैव गॉन थ्रू ऑल द फिगर्स. अब यहां लिखेंगे आप f, विच इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? ये जो भी आपने टेलीबार्स यहां पे बेटा मार्क किए हैं, फाइन, कन्वर्ट दीज इनटू द फ्रीक्वेंसी सच एज 1 2 3 4 5 6 7. 7 bars are there, mention 7 here. 13, single time 1, 14, 2, 15, 2, 16, 1, 17, 2, 18, 1, 19, 2, and this 20, again it is 2. Fine. What I told you that mode is the particular figure which is having the maximum frequency in the series. Now you can see कि maximum frequency is what? 7. 7 is of 12. So the mode will be 12 visible. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 7 is the maximum frequency of 12, so MO is equals to 12. This is what? Answer. Clear beta yahan tak? Again I am repeating, you will be having such kind of X series with you, X variables will be there. Convert these into
कॉमन फिगर्स ओनली एंड अरेंज देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। हो गया यहां तक एक्स आ गया। देन नेक्स्ट विल बी टेलीबार, और टेलीबार के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक एक फिगर को पिक करना है, सी देम हियर एंड पुट द टेली मार्क इन फ्रंट ऑफ देम। देन काउंट दीज टेलीबार्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द फ्रीक्वेंसी। यहां फ्रीक्वेंसी में आपको ऑब्जर्व करना होगा दैट विच नंबर इज गेटिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उस नंबर को हम यहां पे इस तरह से डिस्प्ले करेंगे फॉर द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। Clear beta? So here we have completed both of the methods of individual series, observation method, and then next was by converting the individual series into discrete. Now let's proceed towards the second series, which is discrete. And beta, under discrete series again we have two methods. There are two methods. The first one is inspection method, or you can say observation method as well. And the second one is grouping method. Fine beta. These are the two methods. The one is inspection method और observation method, जहां पे हमें observe करना होगा again the maximum frequency को, and the next one is grouping method. So now let's proceed with the first method, which is inspection. Children, again and again I am saying you one thing, that you need to copy all the content whatever I am presenting here on the board. Under this discrete series you will be provided x and f. क्या होगा बेटा आपके पास, these x variables and the frequency as well. You can see the figures are there, x, 14, 17, 20, 22, 28 and 25. If I talk about frequency, so this is 4, 9, 6, 12, 5 and 8. Fine beta, ये figures है हमारे पास में. Again I am repeating the statement which we saw there on the DG board, that is what? The mode is the particular figure which is having the maximum frequency or the maximum repetition in the series. Here you can see again the repetition and the maximum frequency is 12 of 22. So the mode will be 22. That's it. बस इतना सा बेटा हमारा यहाँ भी आंसर है, कोई फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन नहीं होगी. By the way, the same thing which we have gone through already under individual series also. Individual में जो हमने second method देखा था वो कौन सा था? By converting the discrete series into, by converting the individual series into discrete series. Clear बेटा, ये भी हमने देखा था. So see the same thing is there, बस यहाँ पे टेलीबार्जी तो नहीं है, बाकी तो वही है, discrete series है. So solution will be very same. What we need to write, that 12 as maximum frequency of 28. So MO is equals to 22, and this is the answer. Clear beta? I hope you are enjoying this topic today, क्योंकि बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन जैसा ऐसा कुछ है नहीं, इजी कोई हमारे आंसर्स इंस्पेक्शन से फाइंड आउट हो रहे हैं. So this was the very first method of the discrete series. Now let's proceed towards the second method, which is grouping method. Grouping method कहाँ हमें यूज में लेना है, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, मैं एक बार आपको उसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं बेटा. ग्रुपिंग मैथड बेसिकली हमारा तब यूज में आता है व्हेन वी फाइंड दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज आल्सो रिपीटिंग. मे बी आप में से किसी के माइंड में ऐसा आ रहा होगा दैट्स 12 अगर यहां पे आ रहा है,
अगर मान लीजिए 12 ही कहीं और रिपीट हो जाए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेपिटेशन हो सकता है ना, समटाइम्स इट हैपेंस। तो अगर कुछ ऐसा होगा सर, उस केस में मोड किसको लेंगे? एग्जैक्टली अगर ऐसा कभी भी होता बेटा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी रेपिटेशन होगा, इन दैट सिचुएशन वी विल हैव टू गो थ्रू ग्रुपिंग मेथड। नाउ सी, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफाइड होगा दैट कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, कंपल्सरी नहीं कि ऐसा होगा, यू विल हैव टू सी ऑन योर ओन, आपको खुद ही देखना होगा। क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर दैट कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा, डेटा में आपको खुद ऑब्जर्व करना है दैट इफ देयर इज एनी ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ देन डेफिनेटली विल हैव टू गो थ्रू ग्रुपिंग मेथड। कंडीशन नंबर 2, मैं दोनों कंडीशन से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं बेटा। एज आई टोल्ड यू कि इफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटिंग बाय डिफॉल्ट यू विल हैव टू यूज ग्रुपिंग मेथड, और अगर ऐसा नहीं होता है और यू फाइंड समथिंग लाइक दिस कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नियर बाय कोई भी फिगर रिपीट हो रहा है और अगर सिंगल टाइम भी गिवन है, व्हाट आई एम सेइंग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 12 के नियर बाय जो भी नंबर्स हैं such as 10, 11, in that situation even by default you will have to use grouping method. Here you can see 11 is 0, 12 के नियर बाय है, इससे छोटा है जस्ट, ठीक है। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में भी आपको बेटा ग्रुपिंग मेथड को ही यूज में लेना होगा। क्लियर है बेटा? अब ग्रुपिंग मेथड का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से यूज में लेना है इसको। सो एग्जैक्टली द नेम इज ग्रुपिंग मेथड, सो हमें यहाँ पे सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी। ग्रुपिंग टेबल विल बी देयर, एनालिसिस टेबल विल बी देयर, और उसके बाद फिर हम इंस्ट्रक्ट करेंगे दैट व्हाट कैन बी आवर आंसर। तो चलते बेटा अब हम हमारी ग्रुपिंग मेथड की तरफ। So dear students, these are the 3 steps जो मैंने भी आपको बताई हैं under this grouping method. The first step will be creation of this grouping table. Second will be analysis table and the very third will be inspection. मतलब जो हम analysis table बनाएंगे, final conclusion हम उसके inspection से दे पाएंगे, ठीक है बेटा। one thing I wanna add here is grouping method को आप यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा। वो क्यों? क्योंकि जो अभी हम यहाँ पे टेबल बनाने जा रहे हैं वो ही एज इट इज सेम टेबल हमें बनानी होगी इन कंटिन्यूअस सीरीज ऑल्सो। तो वो चीज आपके यहाँ रिवाइज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको उस चीज को यहाँ पे अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलते बेटा हम अब इस ग्रुपिंग मेथड की तरफ। Suppose this we have the hypothetical data with us x and f frequencies। मैं इसको बेटा यहाँ थोड़ा नैरो इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। हमें यहाँ ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल एक साथ डिस्प्ले करनी होगी, दैट इज मैं इसको यहाँ पे काफी शिफ्ट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी हियर ऑन द बोर्ड 14, 15, 16, 17, 18, 19 and this 20, 2, 4, 5, 3, 8, 1 and 8. Now see the question very carefully. X series is given there and this frequency is there. What I told you, या तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा दैट यूज ग्रुपिंग मेथड, इन केस नहीं होता तो हाउ कैन यू ऑब्जर्व? You can see there frequency is given and there is the repetition of frequency. Getting my point what I am saying? 8 and 8 is the maximum frequency that we know. यहाँ जितने भी फिगर्स है उसमें 8 मैक्सिमम है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रेपिटेशन वाले केस में हमें अब क्या करना होगा? ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी। ग्रुपिंग टेबल के लिए बेटा एक कैलकुलेशन होती है, इसका एक यूज होता है। वो कैसे? ये जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यू विल हैव टू कंसिडर दिस एज कॉलम नंबर 1। एक्चुअली वी नीड टू मेक 6 कॉलम्स हियर, तो आप इसको फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे, दिस इज कंपल्शन, ठीक है। देन द नेक्स्ट विल बी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन द कॉलम नंबर 6। गॉट इट? दीज आर द 6 कॉलम्स। इनकी अब अपने आप में बेटा एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होगी। वो कैसे? कॉलम नंबर 1 दिस विल रिमेन एज इट इज, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे। कॉलम नंबर 2 की कैलकुलेशन क्या होगी? 1 + 2, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी 2 + 3, अनदर विल बी 1 + 2 + 3
next will be 2 plus 3 plus 4 and the last will be 3 plus 4 plus 5. बेटा इस कैलकुलेशन को कॉपी जरूर करना है और इवन इसे याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, जब तक अगर आपने कैलकुलेशन स्पेसिफाई नहीं की तब तक आप कैलकुलेशन ठीक से कर भी नहीं पाएंगे, और अगर इसमें से आपने एक स्किप कर दिया, भूल गए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. नाउ दिस इज व्हाट 1 plus 2. क्या है ये 1 plus 2? Here you can see 1 2 3 4 5 6 7 figures are there. आप चाहें तो मैं यहाँ पे इसके सीरियल नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, so that it will be more easy for you. 1 2 3 4 5 6 and 7 figures are there. क्लियर बेटा? क्या करना है अब आपको इन 7 फिगर्स का? दिस इज 1 plus 2. फर्स्ट और सेकेंड वाले फिगर की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. कैच माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड. तो फर्स्ट और सेकेंड वाले फिगर की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 and 4. तो यहां पे आप ऐड करके लिखेंगे 6 और यहां ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? 14 and 15. ये ब्रैकेट में मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ये जब मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये आपके लिए कैसे कहां पे हेल्पफुल है. ठीक है? तो आपने यहां ऐड तो फ्रीक्वेंसी की, लेकिन नीचे उसके फिगर्स लिखेंगे. देन आगे आपको यही रेपिटेशन करना है. 1 plus 2 मतलब 5 plus 3 is equals to 8 और नंबर्स क्या है इसके? 16 and 17. नेक्स्ट 8 plus 1 9 and the numbers are 18 and 19. इस 8 के साथ कोई पेयर नहीं है. दिस इज ओनली 1. 2 का पेयर नहीं है. इसको एज इट इज लेफ्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना. देन नेक्स्ट कम्स 2 plus 3. अब 2 plus 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले फिगर की फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दीजिए. ठीक है बेटा? फर्स्ट वाले फिगर की फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट किया. अब आता है 2 plus 3. सो आपने क्या किया यहां पे? 2 plus 3. दिस इज 4 and 5. ऐड किया, कितना आया? 9. इनके नंबर्स क्या क्या है? 15 and 16. ठीक है? एज इट इज आपको आगे करना है. बट रिमेंबर वन थिंग, 1 आपने सिर्फ सिंगल टाइम लेफ्ट करना है, बार बार नहीं करना. दिस यू हैव टेकन 2 plus 3. अब आगे भी आपको यही लेना है 2 plus 3. यहां लेफ्ट मत करना कुछ भी. 8 plus 3 is equals to 11. फिगर्स क्या है? 17 and 18 और दोबारा एक पेयर बनेगा, दैट इज 1 plus 8 और ये क्या है? 9. नंबर्स क्या है? 19 and 20. हो गया. नेक्स्ट आता है 1 plus 2 plus 3. मतलब दिस 1 plus 2 plus 3 करेंगे. 2 plus 4 6 plus 5 11 and figures are 14 15 and 16. नेक्स्ट अगेन हमको यही रेपिटेशन करना है. 1 plus 2 plus 3 मतलब 17 18 और 19 के फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. 3 plus 8 11 plus 1 12. फिगर्स क्या क्या हमारे पास? 17 18 and 19. नीचे अब सिंगल रह गया 20. इसका पेयर नहीं बन पा रहा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होगा. फिर फिगर आता है 2 plus 3 plus 4. कॉलम नंबर 5. फर्स्ट वाले को लेफ्ट करेंगे. 2 plus 3 plus 4. दिस इज व्हाट? 4 plus 5 9 plus 3 12 and the numbers are 15 16 17. ठीक है? 2 plus 3 plus 4. next again 2 plus 3 plus 4. 8 and 8 16 and plus 1 17 and the figures are 18 19 and 20. हो गया. लास्ट कॉलम से इज दैट 3 plus 4 plus 5. मतलब 1 और 2 को लेफ्ट करेंगे, 3 plus 4 plus 5 लेंगे and the frequency is 5 3 8. 5 plus 3 8 8 plus 8 16 and the figures are 16 17 and this 18 is there. Clear beta? नीचे we have taken 3 plus 4 plus 5. next 3 plus 4. फिफ्थ के लिए कोई यहां पे फिगर नहीं है, इसको ऐसे लेफ्ट कर देंगे. यहां तक हो गया बेटा. ये अभी हमने क्या बनाई? ओनली ग्रुपिंग टेबल. इसके बाद अब आपको क्या करना है? कॉलम 1 to 6 में जो भी ऐसे फिगर्स है जो कि मैक्सिमम है, जैसे कॉलम 1 में मैक्सिमम क्या है? 8 and 8. सर्किल, वी विल एनसर्कल देम. कॉलम 2 में क्या है? 6 8 and 9. मैक्सिमम इज 9. एनसर्कल दिस.
Then the next is 9, 11 and 9. Only 11 is maximum, it will be encircled. In this 12, here 17 and this is a single one, तो यही अपने आप में मैक्सिमम होगा, ये हो गया मैक्सिमम। तो ये क्या था बेटा अभी जो हमने बनाया है, ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। अब क्या ड्रॉ करेंगे बेटा हम, एनालिसिस टेबल। और इस एनालिसिस टेबल को बेटा ड्रॉ हम कैसे करेंगे, देखिएगा इसका भी एक पैटर्न होता है। वी हैव दीज 6 फिगर्स, 1 2 3 4 5 6 आर देयर, और यहां देखे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको हम ये लेंगे यहां पे, दैट इज व्हाट एक्स, और यहां हो जाएगा कॉलम, ठीक है। एक्स क्या क्या प्रोवाइडेड है, 14 15 16 17 18 19 एंड दिस इज लास्ट 20। कॉलम कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट इज 6। हो गया बेटा, 6 कॉलम्स हो गए हमारे पास में। अब क्या करेंगे बेटा इसे हम, 14 में देखिएगा, आई मीन फर्स्ट कॉलम में देखिएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस 8 एंड 8 कौन से फिगर्स की है, 18 एंड 20, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या करना होगा मुझे, 18 और 20 के आगे एक बार मार्क करेंगे। इन फर्स्ट कॉलम दिस 18 एंड 20 के आगे मैंने एक एक बार मार्क कर दिया। सेकेंड कॉलम मैक्सिमम इज 9, अभी 9 किस किस से आया है बेटा, उसी के लिए मैंने आपको यहां पे फिगर्स लिखवाया था एक्चुअली, ठीक है। 9 जो है ये कौन कौन से फिगर्स की फ्रीक्वेंसी है, ऐड करने से आई है, तो किससे आई थी, 18 और 19 से। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम में 18 और 19 के आगे बार लगाना है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने नीचे आपको फिगर्स लिखवाए थे। थर्ड क्या है, 11, फिगर्स क्या है इसके, 17 और 18, इन थर्ड 17 एंड दिस 18। कॉलम फोर्थ मैक्सिमम इज 12, किस किस से, 17 18 एंड 19, 17 18 19। Column 5, 17 is maximum of 18, 19 and 20, and the last is 16 and the numbers are 16, 17 and this 18. Clear beta? All the 6 columns have been marked here. अब करेंगे इसका टोटल। यहां कोई फिगर नहीं है, 0, 15 में भी कोई नहीं है, 16 में 1 1 2 3 आई मीन इन बार्स को ऐड करेंगे, 18 में 1 2 3 4 5 6, here 1 2 3 and in 20 only 2. Fine beta. What I told you, the third step will be observation. अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या इंस्पेक्ट करेंगे कि एनालिसिस टेबल में अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है, एंड दैट इज 6। फाइन, नीचे स्टेटमेंट क्या देना होगा हमें यहां पे, that 6 is maximum frequency of what, 18 in analysis table so MO, that is what, mode is equals to 18 and this is the answer. यहां भी बेटा हमने किसी फॉर्मूले का यूज नहीं लिया, what we did only grouping table, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यहां पे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड 1 + 2, थर्ड 2 + 3, फोर्थ 1 + 2 + 3, फिफ्थ 2 + 3 + 4 एंड द कॉलम नंबर 6 एज 3 + 4 + 5। कैलकुलेशन की हमने फ्रीक्वेंसी की, दैट यू कैन सी। एनालिसिस टेबल को ड्रॉ करना होगा और इस टेबल से हम टोटल से ऑब्जर्व करेंगे दैट विच इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ विच नंबर इज विल, और उससे यहाँ स्टेटमेंट में देना होगा दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया बेटा ग्रुपिंग मेथड को, इसको अच्छे से समझिएगा, रीजन क्योंकि इसका रेपिटेशन होगा, आई मीन सेम मेथड हमारा कंटिन्यू सीरीज में भी आने वाला है। तो चलते बेटा अब हम कंटिन्यू सीरीज की तरफ।